Very good morning to all of you. Yesterday we studied about the structure of anther, and now moving forward, yesterday we also studied that what is microsporangium, what is the structure of microsporangium, and how the descent of pollen occurs. Now let us study about the structure of pollen. So as I told you that in microsporogenesis, from a single microspore mother cell, four tetrads are produced via meiosis 1 and meiosis 2. So these tetrads are separate from each other and they form pollen. Now coming to the structure of pollen, so each pollen consists of there is outer layer, the pollen is double layered, there is one inner layer, it contains germ pore, vegetative cell and generative cell. So if I draw a structure of pollen, so this represents outer layer, that is called as exine. This is inner layer, that is called as intine. Inside it there are two nucleus or two cell. One is large, that is called as vegetative cell, and the other one is called as generative cell. Now there are some regions like this where there is no outer wall, and these regions are called as germ pore. Now let us understand these terms very carefully. The outer layer is called as exine, and if you remember, yesterday we studied the structure of function of tapetum, and one such function of tapetum is it helps in the formation of these layers around the pollen. Now exine is made up of a substance called as sporopollenin. It is a carotenoid which get oxidized. Now remember, this sporopollenin is resistant to any enzyme activity. Mean कोई भी नॉन एंजाइम इस स्पोरोपोलेनिन की वॉल को डिग्रेड नहीं कर सकता. इसकी वजह से पोलन काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, एंड इसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब पोलन के ऊपर अटैक करके उसको डैमेज नहीं कर सकता है. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ द एंटायर वॉल इज कवर्ड विद एक्साइन, तो जब कभी भी पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए यू सी सर्टेन रीजन्स विच आर कॉल्ड एज जर्म पोर. जर्म पोर वो रीजन है जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है. तो दीज जर्म पोर्स रिप्रेजेंट रीजन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट. तो होता क्या है, जब भी पोलन ट्यूब बननी होगी तो पोलन ट्यूब इन्हीं किसी जर्म पोर से ही जर्मिनेट करती है. कमिंग टू द इनर लेयर, दिस इनर लेयर इज मेड ऑफ पेक्टोन एंड सेल्यूलोज, सो इट इज कॉल्ड एज पेक्टोसेल्यूलोजिक इन नेचर. आई एम रिपीटिंग अगेन, पेक्टोन मीन्स प्रोटीन, सेल्यूलोजिक मीन्स सेल्यूलोज. तो जो इनर वॉल होती है पोलन की, it is made up of both pectin and cellulose, so we say that the layer is pectocellulosic in nature. Coming to now what happens when the
pollen is inside the anther, the pollen nucleus divides mitotically. Again I am saying pollen कैसे बना, इसके पास ऐसे न्यूक्लियस होगा, मियोसिस से 4 टेट्राड बने. इसी स्टेज में जब ये एंथर के अंदर ही है तो इसका पॉलन माइटोटिकली डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाता है. इसमें से एक न्यूक्लियस बड़ा बनता है, इसके पास साइटोप्लाज्म डेंस होगा, और इस पूरे पॉलन का जो बड़ा रीजन होगा या ज्यादा हिस्सा होगा उसमें ये वाला न्यूक्लियस होता है. बाद में इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल भी बन जाती है. सो इट इज कॉल्ड एज, जब दिस लार्ज पोर्शन इट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल and this smaller portion is known as generative cell. So this two-celled condition is visible in the pollen when it is present inside the anther itself. Please listen this carefully. When क्योंकि जब pollen anther के अंदर ही है तभी उसका न्यूक्लियस डिवाइड करके वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बना देता है. So the pollen is in two-cell stage inside the nucleus itself, inside the anther itself. Sorry. So वेजिटेटिव सेल इज कैसा सेल है, ये लार्ज सेल है, इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा या प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड डेंस साइटोप्लाज्म. The supposed function of vegetative cell is that it provide nutrition to the generative cell. इट हैज बीन बिलीव कि वेजिटेटिव सेल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करता है, जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देता है. नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जनरेटिव सेल, वन विच विल जनरेट समथिंग. तो ये जनरेटिव सेल वो सेल है, पहले तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, एंड दिस जनरेटिव सेल बेसिकली इट फॉर्म्स two male gamete which enters pollen tube. तो जो 2 मेल गैमेट बनते हैं, और ये भी ध्यान रखना जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल न्यूक्लियस बनाता है, तो ये डिवाइड करके 2 गैमेट बनाता है और जो कहां एंटर करते हैं, पॉलन ट्यूब में. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन. अब एग्जाइम का जो आपने डिजाइन देखा, ये पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं और ये पैटर्न टेक्सोनॉमी में बहुत यूज किए जाते हैं फ्लावर को, प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए. नाउ रिमेंबर वन थिंग, नाउ यू हैव स्टडीड दैट पॉलन इज इन टू सेल कंडीशन. तो इन 60% प्लांट्स और 70% प्लांट्स, एनसीईआरटी में 60 है बट मोस्टली इट इज 70% प्लांट, जब पॉलन रिलीज होता है एंथर में से तो पॉलन हमेशा टू सेल्ड कंडीशन में ही रिलीज होता है. इन मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स द पॉलन इज रिलीज्ड इन टू सेल्ड कंडीशन. नाउ आप टू सेल समझ सकते हो, टू सेल क्या हुआ, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल. जबकि 40% एंजियोस्पर्म्स में जब पॉलन रिलीज होता है तो ये पॉलन, ये हो गया वेजिटेटिव सेल, इसका जनरेटिव सेल भी डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेता है. सो दिस इज कॉल्ड एज 3 सेल स्टेज और 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज. I don't know, we can call it 3-celled. No, this is not to be called as 3-celled because there are 2-celled and 3 nucleated stage. मतलब मेल गैमेट कुछ में जब एंथर के अंदर है तभी बन जाते हैं, कुछ में जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है पॉलन उसके बाद मेल गैमेट बनते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन. अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं पॉलन से रिलेटेड, इसके बाद ये टॉपिक यहाँ पे खत्म ही है. तो पहली चीज है, एक टर्म आता है पॉलन वायबिलिटी. वायबिलिटी मतलब जिंदा रहना. तो आफ्टर रिलीज ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर, the time up to which
pollen remain active? एंथर से रिलीज होने के बाद कितनी देर तक पॉलन एक्टिव रह सकता है? एक्टिव का मतलब होता है कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके पॉलन ट्यूब बना सकता है. दिस पीरियड इज कॉल्ड एज पॉलन वाइबिलिटी. नाउ देयर आर सम प्लांट्स हुज पॉलन आर वाइबल फॉर ओनली 72 आवर्स. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके पॉलन 2 ही आवर्स के लिए वाइबल है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पॉलेंस 100 ऑफ ईयर्स तक वाइबल है. किसी जगह का एक्सकेवेशन किया गया था और वहां पे कुछ प्लांट्स के पॉलन मिले थे, और उस पॉलन की जो एज थी वो थी 1300 ईयर्स. मीन्स दैट पॉलन वॉज वाइबल फ्रॉम लास्ट 1300 ईयर्स, और वो पॉलन अभी भी एक्टिव था. मतलब उसको अगर आप सुटेबल एनवायरनमेंट दोगे तो वो पॉलन ट्यूब बना लेगा. तो दिस प्रॉपर्टी वेराइज फ्रॉम फॉर डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स. दिस पीरियड कैन वेराई फॉर देम. Now, one of the disadvantage of pollen is, if you have seen in mountain area, there is a grass called as Parthenium, or in local language it is called as carrot grass. You must have seen this grass near the footpath, having flowers. गोभी के जैसे छोटे छोटे फूल होते हैं इसके ऊपर. ये जो पार्थेनियम है, ये 1950s में जब हमने when we imported wheat from the United States of America, ये उसके साथ वीड आई थी, और इसकी जो पॉलन है, इसका जो पॉलन है वो एलर्जी कॉज करता है, एंड इट कैन कॉज, अगर इसको इनहेल कर दिया तो अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ह्यूमंस में. इनहेलेशन ऑफ सम पॉलन कॉजेज एलर्जी, and this pollen, Parthenium inhalation, prolonged exposure can causes asthma or other respiratory problems. Now, there are some uses of the pollen also. The biggest advantage of pollen is it is used as a steroid. pollen को steroids के तौर पे यूज किया जाता है क्योंकि ये अच्छे एनर्जी सोर्सेज हैं. तो स्टीरॉइड्स वो होता है जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काम करते हैं. एथलीट्स लेते हैं इनको, तो पॉलन को स्टीरॉइड्स में यूज किया जाता है. पॉलन को कप सिरप्स में भी यूज किया जाता है. इसकी टैबलेट्स भी बनती हैं जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, एंड इट प्रोवाइड्स यू अ सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ फाइनली, इफ यू सी दैट पॉलन इज मेल गैमेट, एंड ऑब्वियसली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलन इज रिक्वायर्ड. इफ वी सी दैट many of plants have become extinct nowadays. Many plants are endangered. Many are on the verge of getting extinct. So here there is a technique that can be used to preserve pollen. अगर हम pollen को preserve करते हैं तो future में हम उसको फिर use कर सकते हैं कहीं और germination करने के लिए. तो ये तब beneficial हो जाता है when we are speaking of a plant which is extinct or which is on the category of getting extinct. अब जो हो चुका है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट जो प्लांट बहुत रेयर है, बहुत कम बचे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनके पॉलेंस को हम स्टोर कर सकते हैं. एंड दिस स्टोरेज इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन. जैसे मनी के लिए सेविंग बैंक्स होते हैं लाइक SBI, ऐसे ही पॉलन बैंक्स भी होते हैं जहां पे क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है. इसमें क्या करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन को प्रिजर्व कर दिया जाता है. इसको प्रिजर्व करने का फायदा यह है कि स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म. जब आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं तो जो मेटाबॉलिज्म, जो पॉलन के अंदर की रिएक्शन है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है. तो इट कैन रिमेन एक्टिव फॉर द पीरियड यू वांट टू kept in that preservation. So this is one method which can be used to preserve the pollen of plants that can be extincted in the nearby future, or whenever required then they can be germinated. So this is called as cryopreservation. So this is all about the male reproductive structure. Now if you have any queries, please do ask. That is all for today. If you have any questions, please do ask. Thank you.